हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज हम नर्सिंग फाउंडेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जो नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन का एक सब टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग में सबसे पहला मेथड है नैरेटिव चार्टिंग। This is the first method in nursing documentation for recording different records. This is narrative charting. It is a traditional method for recording nursing care provided. It is a story-like format to document information specific to client condition and nursing care. नरेटिव चार्टिंग एक पुराना मेथड है जिसमें जिसमें हम एक तरह से जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं वो सारा उसमें उतारते हैं। एक तरह का ये फॉर्मेट है जिसमें हम एक स्टोरी लाइक अपीयरेंस में या स्टोरी लाइक फॉर्मेट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। मीन्स एक तरह से विस्तार पूर्वक या एक तरह से कहानी के रूप में, कथा के रूप में, कि जैसे कि आज हम सुबह इतने बजे इस वार्ड में इस पेशेंट को बेड नंबर इतना इसका नर्सिंग केयर दिया, तो इस तरह से अपने एक स्टोरी के रूप में इसको पूरा डिटेल में लिखते हैं। नंबर सेकंड मेथड है सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग। डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्डिंग डन बाय ईच मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम on separate parts. On the most prominent feature of this problem oriented method of documentation is the structured way in which narrative progress notes are written by all health care team members using the SOAP, SOAPE or SOAPIER format. सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है, जैसे हमने नरेटिव चार्टिंग में किया था। इस फॉर्मेट में हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के सारे मेंबर्स अपना अपना रोल इसमें लिखते हैं, उन्होंने क्या काम किया। सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग का फॉर्मेट एक तरह से SOAP और SOAPIR फॉर्मेट होता है, जिसमें S फॉर सब्जेक्टिव द क्लाइंट्स ऑब्जर्वेशन को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, O फॉर ऑब्जेक्टिव द केयर प्रोवाइडर्स ऑब्जर्वेशंस, and A for assessment the care providers understanding of the problem. Plans, goals, action, advice, interventions which an interventions was identified and the change to meet the client's need. And E for evaluation, how outcomes of care are evaluated. And R for revision, when change to original problem come from revised. तो ये SOAP एंड SOAPIR का यहाँ पर फॉर्मेट देगा, जिसमें S फॉर सब्जेक्टिव, O फॉर ऑब्जेक्टिव, A फॉर असेसमेंट एंड P फॉर प्लान गोल्स एंड E फॉर एवेल्यूशन एंड R फॉर रिवीजन यहाँ पर हमने नोट किया है। नंबर थर्ड मेथड है प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग। Problem oriented charting, this is a method of documentation that places emphasis on clients' problems. Here, each member of healthcare team contributes to a single list of identified clients' problems. The nursing process forms the basis for POMR method of documenting the client's problem listed. The advantage of this method of documenting are as follow: give emphasis to clients' perceptions of their problems, requires continuous evaluation and revision of the care plan, provides great
continuity of care among healthcare team members, increase efficiency in gathering data, reinforces use of the nursing process. POMR प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग में हम जो भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स है क्लाइंट से रिलेटेड जो भी उसके आइडेंटिफिकेशन क्लाइंट्स की प्रॉब्लम का मेन इसमें एम्फेसिस होता है, ये सारे हम रिकॉर्ड्स करते हैं। क्लाइंट्स का परसेप्शन फर्स्ट जो भी प्रॉब्लम है वो रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट रिक्वायर कंटिन्यूस इवेल्यूशन एंड रिविजन ऑफ द केयर प्लान मीन्स आफ्टर द इंटरवेंशंस we provide to client, and we done the evaluation and revise the plan. If not, client is not satisfied the care, next provide greater continuity of care among the healthcare team members, increase efficiency in gathering data, reinforces use of the nursing process. Number next, pie charting method of recording. The key component of the system are assessment flow sheet and nurses progress note with plan of care. The pie notes are numbered according to the client's problem, resolved problems, and dropped from daily documentation after the register nurse reviews. पाई चार्टिंग भी एक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग है। इसमें जो भी नर्सेज के केयर नर्सिंग प्रोसेस उसको हम एक रिकॉर्ड करते हैं, एंड इफ देयर इज नॉट satisfactory care and no resolution care, then we write everything on this pie chart. Next, focus charting method of recording. Focus charting is the method of identifying and organizing the narrative documentation of the client's concern. Means इसमें जो भी हमने narrative documents लिखा है उसको आइडेंटिफाई करना है। दिस मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन consists of notes that include data both subjective and objective actions or nursing interventions and responses of the client. The notes are structured according to the client concern. भी एक तरह का मेथड है। इसमें हम क्लाइंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इसमें राइट डाउन करते हैं, और हमारे इंटरवेंशंस क्लाइंट के रेस्पॉन्स सारी चीज़ें इसके अंदर लिखे जाते हैं। द नोट्स इन दिस फॉर्मेट आर रिटन साइन एंड सिम्टम्स, नर्सिंग डायग्नोसिस, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, कंडीशंस, बिहेवियर, चेंजेस इन द क्लाइंट कंडीशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें नोट करते हैं। नेक्स्ट है चार्टिंग बाय एक्सेप्शन। Is a charting method of that require nurse to record only deviation from the established norm. मीन्स इस तरह के मेथड में जो भी क्लाइंट का एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल मीन्स कोई भी हमको ऐसा स्थिति लगती है ख़राब, तो ये सारे इसमें हम नोट करते हैं। मीन्स क्लाइंट की जो भी डेविएशन है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स वो इसके अंदर नोट किए जाते हैं। द की एलिमेंट रिक्वायर्ड टू CBE. CB means chart by exception. Practice setting documentation, policies and protocols, assessment norms, standard of care, individualized care plan, unique flow sheet. Besides accessibility of documentation form, it is not acceptable to use documentation by exception unless these exist. तो ये सारी चीज़ें हम चार्टिंग बाय एक्सेप्शन में लिखते हैं। अंदर हमको जो भी डेविएशन लगेगा नॉर्मल से में जो भी केयर है नॉर्म से नहीं है, हॉस्पिटल पॉलिसीज से नहीं है, वो हम सारे इसमें रिकॉर्ड करेंगे। नंबर नेक्स्ट मेथड है ग्राफिक शीट एंड फ्लो शीट। हेल्थ केयर रिकॉर्ड एंट्रीज शुड रिफ्लेक्ट द मोस्ट recent assessment as they are done to ensure treatment decisions are based on accurate information. If the documentation on a flow sheet or checklist check mark may be used as low as it is clear who performed the assessment or interventions, the meaning of check mark
और सिंबल यूज मस्ट बी आइडेंटिफाई इन द प्रैक्टिस सेटिंग पॉलिसीज। तो ग्राफिक शीट एंड फ्लो शीट में हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे एंट्रीज रिलेटेड टू क्लाइंट ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर, नर्सिंग प्रोसेस और एनी अदर एक्टिविटी, एक तरह से हम इसमें एक सिंबल मार्किंग के रूप में, चेकलिस्ट मार्किंग के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड करते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं एज फ्लो शीट। तो फ्रेंड्स, ये था मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग जो हम नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग पायल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।